this is the part 7, and I think we will have another couple of parts, and then we will be done with the study of Romans. ये सातवां भाग है, ये रोमियो पुस्तक का जो स्टडी है इसका, और शायद 2 भाग होंगे, और उसके बाद हम रोमियो का पुस्तक समाप्त करेंगे. And today we are in one of the most climax passages of the scriptures. हम जो इस पुस्तक का एक क्लाइमैक्स का एक भाग में हम पहुंचे हैं. So we quickly recap part 1. We saw outline of Romans. Part 2, we were seeing about the first and the last part of Romans. Part 3, we were focusing more on Israel, where 9, 10 and 11 chapters we were looking at. Part 4, we looked at the gospel is the power of God for salvation, and we also looked at righteousness of God through faith. Part 5, we were looking at more at the wrath of God on sin. And part 6, we started off with the continuation of where we left, and we also looked at in the last session, last week, we looked at Romans chapter 3, verse 21 to 31, which says about justification through faith in Christ. हम लोग जस्ट एक रिकैप करने के लिए अभी तक हम क्या सीखा. पहला भाग में हमने रोमियो का पुस्तक का आउटलाइन और उसका इतिहास, बैकग्राउंड के बारे में सीखा, और हमने पार्ट 2 में वो इंट्रोडक्शन कंटिन्यू किया, और हमने उसका इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया, और उसके बाद तीसरा भाग में इजराइल के कनेक्शन में, इजराइल के लोगों के बैकग्राउंड में उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और फिर हमने चौथा भाग में सुसमाचार जो परमेश्वर का शक्ति सामर्थ है उद्धार के लिए, और परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में जो विश्वास द्वारा हम प्राप्त करते हैं. फिर 5वां अध्याय में पाप के विषय में और परमेश्वर का पाप के विरोध जो परमेश्वर का क्रोध है उसके बारे में सीखा, और 6वें भाग में हमने वो पार्ट कंटिन्यू किया, और धार्मिक ठहराने का, विश्वास द्वारा धार्मिक ठहराने का विषय हमने शुरुआत किया. And today we are going to look into a little bit more into detail about what justification through faith in Christ is. और हम और गहराई रीति से हम सीखेंगे जो ये विश्वास द्वारा धार्मिक ठहराना क्या होता है. And how Paul is explaining through book of Romans chapter 4 about Abraham and his faith and how it was connected to justification. And in the 5th chapter, sorry, go ahead. Yeah, go ahead. हम ये सीखेंगे कि चौथा चैप्टर में पौलुस अब्राहम के विषय में, अब्राहम ने कैसा विश्वास किया और वो विश्वास कैसा हमारा धार्मिक ठहराने से जो कनेक्टेड है, वो विषय हम देखेंगे. और 5वां अध्याय में हम ये देखेंगे कि, and in 5th chapter we're going to see about how Christ has actually taken the place of what we had to go through, and what is the connection between Adam and Jesus Christ, and that aspects we will see. और हम ये देखेंगे 5वां अध्याय में कि कैसा हम जहाँ पे दंड सहन करने के योग्य थे, वहाँ यीशु मसीह हमारे जगह पे दंड सहन किया, और कैसा यीशु मसीह और आदम के बीच में क्या कनेक्शन है, वो हम सीखेंगे. And in the next, God willing, 2 weeks of this month, we should be finishing off with the book of Romans with the remaining chapters. और आगे का 2 हफ्तों में, ये महीने का 2 हफ्तों में हम रोमियो का पुस्तक का स्टडी समाप्त करेंगे. So last week when we started off, we saw, when we were ending towards the end of it, we saw that justification was the act of being declared righteous in the sight of God. हम लोग ने ये सीखा कि धार्मिक ठहराना का अर्थ ये है कि परमेश्वर पिता के सामने हम धार्मिक कहलाते हैं. And we also saw salvation is by grace only, grace alone, by faith only, and through Christ alone, and through the scripture alone, and it is to the glory of God alone. हमने ये सीखा कि जो उद्धार पाना जो है वो करुणा परमेश्वर का
कृपा के कारण हमारा विश्वास के कृपा से ही, विश्वास द्वारा ही, परमेश्वर का वचन द्वारा ही और यीशु मसीह द्वारा ही, और सिर्फ परमेश्वर का महिमा के लिए ही। So we also saw about Romans chapter 3 verse 21 to 26. Just to catch up on that part, let us just quickly read. I have Hindi as well over here on the screen, so Israel, you can read that. Romans chapter 3 verse, we'll look at it, verse 22, 23, 24, 25, 26. So I'll read it in English, you can read it in Hindi. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fallen short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation, substitution, by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed, and to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते, ये धर्मी ठहराया जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किया गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धार्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। So the last verse is saying, जरा हिंदी को माफ करना, 3-4 साल हो गया हिंदी पढ़ के बोल के, सॉरी, सबको practice हो जाएगा, ठीक है। Last verse of it is saying to demonstrate. Why did God do all this? To demonstrate at the present time his righteousness, that he might be the just. So God is the just and he is also the justifier. So he is the one who actually executes justice, and he is also the one who is actually justifying those who have faith in Jesus Christ. तो आखिरी का वचन में ये कहता है कि परमेश्वर ने ये सब क्यों किया, ताकि प्रकट कर पाए परमेश्वर का धार्मिकता, और इधर कहता है कि परमेश्वर ही धर्मी है और परमेश्वर ही धर्मी ठहराने वाला है। So let us look a little bit more into details about what is this justification and how this relates with our lives. हम और आगे देखेंगे कि धर्मी ठहराना क्या है और ये हमारे जीवन से इसका क्या कनेक्शन है। So for understanding this passage, let's look a little bit into Romans 8:28, 9 and 30. हम रोमियो का 8वां अध्याय का 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। 28th verse is very famous, and we know that all things work out together for good. हमें ये पता है कि सारे बातों हमारे भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। And that verse is very famous.
और वो बहुत एक सबको जानने वाला एक वचन है। But the next verse after that is one of the even more powerful verses, I can say. उसके बाद जो लेकिन वचन है बहुत एक एक बहुत पावरफुल वचन है। And it says, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। This actually just explains the entire plan of God. ये जो वचन है परमेश्वर का, जो पूरी तरह से जो परमेश्वर का योजना है, वो ये वचन से हमें समझ पाते हैं। God foreknew us. परमेश्वर हमें पहले से ही जान लिया। God predestined us. और परमेश्वर ने पहले से ही हमें ठहराया भी है। And then God called us. और फिर परमेश्वर ने हमें बुलाया। And you can imagine when that calling happened, in each of our lives. और ये जो बुलाना परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने जो हमें बुलाया, हम वो समय हम याद कर सकते हैं। God called us and then God justified us. परमेश्वर ने हमें बुलाया और फिर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। And those he justified, God, if he has justified us, he will also glorify us. और परमेश्वर ने अगर हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर एक दिन हमें महिमा भी देगा। God adopted us into his family as God's परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का परिवार में मोल लिया है। In the earlier parts we saw Jews were the only people who were actually supposed to be God's children. पहला हमने ये पढ़ा कि पहला ये प्लान था कि सिर्फ यहूदी लोग ही परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के योजना में जुड़े थे। But God extended the gospel to all the nations. लेकिन परमेश्वर ने सुसमाचार सारी दुनिया के लिए फैला दिया। So that his elect, so that his elect could there be more children, God's children, not only just the Jews but also from the Gentiles. ताकि परमेश्वर के परिवार में और लोग जुड़े, सिर्फ यहूदी नहीं। And also from the Gentiles. अन्य जाति। और अब अन्य जाति लोगों में भी परमेश्वर के चुने हुए लोग बने। So through Christ being the firstborn, we have the same heavenly Father as our Father. तो यीशु मसीह पहला पुत्र होने के कारण हम सब यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के पिता के परिवार के बच्चे हैं। And he is our Father. और वो हमारे पिता है। Amen. God renews our hearts through his word. परमेश्वर हमारा हृदय को नया बनाता है उसके वचन के द्वारा। So God called us and he justified us and he's renewing our hearts through his word, and he draws us to Christ through his spirit, by which we are able to call out Abba Father. है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें धर्मी ठहराया और उसके वचन द्वारा हमारे हृदय को नया बनाता है और हमें यीशु मसीह की ओर हमें खींचता है उसके परमेश्वर के आत्मा द्वारा, कि उस आत्मा द्वारा कि हम पुकार पाए अब्बा पिता। God's Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं।
So God chose us and God elected us before the foundation of the world, and that's really eternity. इस दुनिया के शुरुआत के पहले, दुनिया के सृष्टि के पहले ही, अनंत काल के समय से परमेश्वर ने हमें चुना. And He in due time, He justified us through faith in Christ. और सही समय पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया. So the practice of prayer, what we have, the daily repentance that is there, good works we talked about last week as well, all these kind of things that we do, these are all actually the fruit or the result that spring forth from an understanding and knowing God and His justifying grace. तो हम, और ये जो हमारे जीवन में जो प्रार्थना है, जो हमारा मन फिराहट है, जो हमारे अच्छे काम है, ये सब कुछ जो मसीह जीवन के जो हम जो एक्सपीरियंस करते बातें हैं, वो परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना और परमेश्वर का धार्मिक ठहराने वाला जो अनुग्रह है, उसका फल है प्रार्थना का जीवन, उसका फल है एक मन फिराहट का जीवन, उसका फल है अच्छे काम. Justification through faith in Christ, that is the actual base for all the other things to have cling on to. तो जो परमेश्वर के विश्वास, यीशु मसीह का विश्वास द्वारा हमारा धर्मी ठहराने का अनुभव है, वो हमारा नेव है, वो फाउंडेशन है, और उसके ऊपर बाकी सारे बातें हमारा जीवन से उत्पन्न होता है. It's like that, you carry everything on your shoulders, but if there is no shoulder, it all falls down. वो हम ये एक उदाहरण बोलेगा तो हम जो बहुत सारे बोझ है, बहुत सारे जो चीजें हैं, अगर हम चल रहे हैं तो वो हमारे कंधे पर लेकर हम चलते हैं, लेकिन अगर हमारा कंधा टूट गया तो सारा जो हम पकड़ रहे हैं वो सब कुछ गिर जाता है. So everything else needs to be seen in the light of what God has done for us. तो सारे जो हमारे जीवन से जो भी उत्पन्न होता है, सारे अच्छे बातों हम ये दृष्टि से देखना है, सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन में क्या किया. If you study the life of Joseph and you want to become like Joseph, that doesn't make any useful meaning without looking at the God of Joseph or God, what God did in Joseph's life. अगर हम जोसेफ, अब आप समझो जोसेफ का जो हम जीवन सीखेंगे और जोसेफ के स्वभाव और जोसेफ जैसा हम बनना चाहते हैं, सिर्फ उसी दृष्टि में देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जोसेफ का परमेश्वर कौन है और जोसेफ का परमेश्वर ने जोसेफ का जीवन में क्या किया, ये बात हमें पहला समझना चाहिए. Sometimes you could see, David and Goliath stories and all that, and look at every giant in your life as Goliath, and all of these kind of things, and you can focus on all these Goliaths that came on David's life, and you could see every problem coming in your life as a Goliath, but you could completely miss out on the God of David. हम अगर दाऊद और गोलियत का जीवन देखेंगे और हम सिर्फ दाऊद और गोलियत पर ही हमारा नजर रखेंगे, तो हम भी हमारे जीवन के हर एक मुसीबत को गोलियत जैसे समझेंगे और हमारे जीवन में आने वाले सारे रुकावट को हम गोलियत जैसे समझेंगे, और हम शायद अनुभव नहीं कर पाएंगे जो दाऊद का जो परमेश्वर है और वो परमेश्वर क्या करता है, वो बात हम समझने से मिस कर देंगे. See, everything that we study from the Word of God, you can go by verse here and there and pick things, but you need to look at it in the light of the scriptures that point to God and to knowing Him completely as He is. हम जब परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, हम शायद बहुत स्टडी कर सकते हैं, वचन से वचन, एक एक वचन करके हम स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो वचन द्वारा हम परमेश्वर का हमारा समझ और बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का हमारा ज्ञान और बढ़ना चाहिए, और परमेश्वर का अनुभव हमारे में बढ़ना चाहिए. Let's look at a little more in detail about justification. धर्मी ठहराने के विषय में हम और पढ़ेंगे. So the holiness of God is the reason why we need justification from God Himself. परमेश्वर का पवित्रता, ये हमें धर्मी ठहराना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
परमेश्वर का पवित्रता के कारण, होलीनेस इज पवित्रता, राइट? Pavitrata, correct, correct. So, yeah, because God is holy, and in His holiness, even the minutest evil is a great evil. Therefore, there is no other way other than getting that justification from God Himself. परमेश्वर इतना पवित्र है कि एक छोटा सा जो पाप बुराई. है, उसके कारण भी परमेश्वर से और के सिवा हम धर्मी नहीं ठहर पाएंगे. So justification is nothing but making us righteous, and making us righteous brings two things. धर्मी ठहराना बोले तो परमेश्वर हमें कहता है कि हमें ऐसा एक स्थान देता है कि ये व्यक्ति धर्मी है, कि धार्मिकता में रहने वाला एक व्यक्ति है, और उसमें दो भाग आते हैं. One is we receive pardon, we receive forgiveness of sin from God. पहला विषय यह है कि हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमारा पाप का क्षमा प्राप्त करते हैं. And through justification there is an inner renewal. और धर्मी ठहराने से हमारे जीवन के अंदर एक नया होने का, नया बनने का एक अनुभव हम प्राप्त करते हैं. A change in the life. हमारे जीवन में एक बदलाव. So justification is actually for eternity. धार्मिक ठहराना जो है वो अनंत काल के लिए एक अनुभव है. It's not just for this end the things what you have in this world. ये सिर्फ हमारे इस दुनिया का समय के लिए ही नहीं है. Its source is completely God's grace. उसका जो उत्पन्न होता है वो सिर्फ परमेश्वर का करुणा से उसका उत्पन्न होता है. And this whole thing of justification is God's initiative. और ये हमें धर्मी ठहराने वाला का जो शुरुआत है वो परमेश्वर ने किया हुआ वो शुरुआत है. It is in His free and sovereign will that He chose us to be justified by Himself. परमेश्वर का सर्वशक्तिमान, परमेश्वर का जो उद्देश्य में, परमेश्वर का इच्छा में, परमेश्वर ने ही हमें धर्मी ठहराने का निर्णय लिया. We read 1 Corinthians chapter 5 verse 21 to understand this a little bit. हम पहला कोरिन्थियों का 5वां अध्याय का 21वां वचन पढ़ेंगे. This verse is saying here, for He made Him, Jesus, God made Jesus, He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. So you see here two things. One is Christ, God made Jesus Christ sin for us. हम यहाँ पे दो बात देख पाते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को पाप ठहराया. He did no sin in his life when he was वो ही यीशु मसीह जिन्होंने कोई पाप नहीं किया था. He made him to be sin for us. और वो ही यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया. And second thing we see is that we might become the righteousness of God in Him. और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ताकि हम परमेश्वर में परमेश्वर का धार्मिकता बन पाए. So why did God make Jesus Christ to be sin for me? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे लिए पाप क्यों ठहराया? So that I will become the righteousness of God in Him. ताकि मैं परमेश्वर में परमेश्वर का धार्मिकता बन पाऊं. So this is that wonderful exchange which happened, where we give our sin to Christ and Christ gives His righteousness to us. तो यही एक बहुत बड़ा एक्सचेंज होता है कि परमेश्वर हमारा पाप यीशु मसीह पर
को दे डालता है और यीशु मसीह का धार्मिकता हमें देता है। This is what happened through the death of Jesus Christ on the cross. ये बात हुआ यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस के ऊपर। He took my sin as his. यीशु मसीह ने मेरा पाप अपने ऊपर अपना पाप जैसा स्वीकार किया। And he gave me his righteousness in a place where I was not at all righteous. और मेरे को मसीह का धार्मिकता मेरे को दिया उस समय में जब मैं बिल्कुल धार्मी नहीं था। What is that great exchange that happened over there? वो जो बड़ा जो एक्सचेंज है, बड़ा वो लेन देन, सब बहुत बड़ा लेन देन, वो क्या था? First part of it was our sins became Christ's sin. पहला बात ये हुआ कि हमारा पाप यीशु मसीह का पाप बन गया। He bore my sins. वो मेरा पाप अपने ऊपर लिया। And he suffered God's wrath because of that sin. और वो पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध मसीह ने सहा। For Isaiah we have read, he was crushed आइज़ाया because में of हम God's wrath. पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध द्वारा दबाया गया था, कुचला गया था। I mean, this is one of the biggest things that happened when Jesus Christ died on the cross. ये एक बहुत बड़ा एक अनुभव जो बात हुआ यीशु मसीह जब क्रूस में अपना जान बलिदान दिया। And that comes through faith in Jesus Christ. My sin became Jesus' sin. और वो ये अनुभव हम प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास द्वारा। मेरा पाप यीशु मसीह का पाप बन गया। That's the verse we read. He made him who knew no sin to be sin for me. वही वचन हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर ने उस मसीह को जो कोई पाप नहीं जाना, उस मसीह को पाप ठहराया मेरे। He was not supposed to. Absolutely, he had no need of facing God's wrath for his own self. यीशु मसीह को अपने खुद के कारण परमेश्वर का क्रोध का क्रोध सहन करने का कोई कारण नहीं था। He suffered God's wrath for me. लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह ने अब परमेश्वर का क्रोध सहन किया। And his righteousness became my righteousness. और यीशु मसीह का धार्मिकता मेरा धार्मिकता बन गया। Just like this is an example that one person has given. Jesus clothes of righteousness. Just imagine that Jesus is wearing a cloth of righteousness. तो एक व्यक्ति ने एक ऐसा उदाहरण दिया, समझो यीशु मसीह एक बहुत सुंदर धार्मिकता का कपड़ा पहना है। And I am wearing a complete filthy rag. और मैं एकदम बहुत गंदा हुआ एक गंदा कीचड़ का हुआ एक कपड़ा पहन रहा हूँ। And Jesus removes his clothes of righteousness. यीशु मसीह अपना धार्मिकता का जो सुंदर साफ कपड़ा निकालता है। He takes my filthy rags and puts on him. और वो मेरे को देता है अपना सुंदर कपड़ा और मेरा जो मैला हुआ गंदा कपड़ा अपने ऊपर लेता है। He took that and he died on the cross and he gave his cloth of righteousness to me to wear. वो गंदा कपड़ा पहनकर मेरे लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान दिया और यीशु मसीह ने अपना खुद का अच्छा धार्मिकता का कपड़ा मेरे को पहनाया। This is that super exchange that happened at that junction where God justified us. He is therefore called as the just and the justifier of those who believe in Jesus Christ. यही महान लेन देन उस समय क्रूस पर हुआ कि यीशु मसीह ने जो मेरे को अपना धार्मिकता दिया, इसीलिए परमेश्वर वो ही धर्मी है और वो ही धर्मी ठहराने वाला है। So now who is the greatest sinner in this case right now? तो इस विषय में सबसे बड़ा पापी कौन है? Who is that greatest thief? सबसे बड़ा चोर कौन है? Who is that greatest adulterer? कौन है वो सबसे बड़ा व्यभिचारी? Who is that greatest murderer? वो कौन है वो सबसे बड़ा जान लेने वाला? That sinless Jesus
He is now considered the greatest of all of these. वो पवित्र यीशु मसीह, वो पाप न जानने वाला यीशु मसीह अभी क्रूस पर सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा खूनी, सबसे बड़ा पापी जैसा उस क्रूस पर यीशु मसीह है. That is that great exchange that God gave me. वो एक महान लेन देन यीशु मसीह ने मेरे लिए किया. This is the gospel. That is the reason why it is said the gospel is the power of God for salvation. यही है सुसमाचार. इसीलिए कहते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर का ताकत उद्धार के लिए है. Because no man can save, in an utterly defeated situation, that is the time when God has actually done something miraculous. क्योंकि कोई ही भी मनुष्य न उद्धार दे पाता. ऐसे एक परिस्थिति में परमेश्वर उद्धार लाया. When he was dead in sin, he made alive. जब हम पाप में मरे थे, मरा हुआ अवस्था में हमें जीवन दिया. Let's quickly move to the next. So God's love is really amazing in all these things. If you cannot miss God's love that is He has shown on us. इस सारे बातों में हम परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया हुआ प्रेम हमें दिखता है. He loved us. He sent His only begotten Son. And it says that if He gave His only begotten Son, will He not do the remaining things with all of it? Can you repeat that again? If He did not spare His only Son, will He not give along with it whatever is needed? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र को भी हमारे लिए छोड़ा नहीं और वो पुत्र को हमारे लिए बलिदान दिया, क्या नहीं वो परमेश्वर हमारे लिए सारे अच्छी बात तो हमारे लिए देंगे. So no man, nobody, no babas, no gurus, no authorities, no leaders, no church people, nobody could actually deliver us from our sin except Jesus. हमारे पापों से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, कोई यहूदी, कोई भी रिलीजियस लीडर्स, कोई भी हमें पाप से उद्धार, हमारे पाप से हमें छुटकारा नहीं दे पाता. And by doing, putting 100 or 1,000 gold coins in some place or by doing anything, you are not going to get this. It's a free gift. कोई भी जगह पे दान करके, कोई भी जगह पे पैसे डाल के, कोई भी मेहनत करके, कुछ भी बलिदान देके भी हम ये पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे. This is a free gift that God has given. ये मुफ्त में दिया हुआ परमेश्वर का दान है. And we read that in Romans chapter 3 where we studied that. हम रोमियो का 3वां अध्याय में हम वो बात पढ़ते हैं. Let's come to the next part. There's one more thing that हम अगला भाग में आएंगे. That we get one more thing, that Christ became a curse for us. कि परमेश्वर हमारे लिए श्रापित बना. And we studied this when we were studying Galatians. We studied this from Galatians chapter 3 verse 13. Why I took up this again is because this is really connected to also this part. हम गलेशियन से ये विषय हमने ये पढ़ा था पहले, लेकिन ये अभी का जो विषय से कनेक्टेड है, इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना. So it was not only the sin and all those things that he took, he became a curse for us. वो सिर्फ हमारा पाप ही नहीं, बट हमारे लिए एक श्राप बन गया. Galatians 3:13 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. गलातियों का किताब में के 3वां अध्याय में 13वां वाक्य में वो कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है. So Christ has set us freedom, given us freedom from the curse of the law. जो न्याय का जो व्यवस्था का जो शाप है, उससे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया. Law pointed towards sin. जो व्यवस्था है पाप की ओर
इशारा किया। Because law was there, we got knowledge about sin. व्यवस्था था, इस कारण हमें पाप का समझ आया। But even before the law existed, people knew that things were wrong or right. बट व्यवस्था आने से पहले भी लोग को समझ था कि गलत क्या है कि सही क्या है। If you look at this law, there is a curse for the law. The law pronounces a curse, it says. लेकिन जो व्यवस्था हम देखेंगे, व्यवस्था एक श्राप भी लाता है, एक श्राप भी प्रकट करता है। And Christ through his death has also saved us from that curse of the law. यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा हमें वो व्यवस्था का जो श्राप से हमें छुड़ाया है। So if you look at people like Peter, he denied Jesus. हम पतरस का जीवन देखेंगे, पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। You look at Paul, he persecuted Jesus. पौलुस को देखेंगे, पौलुस ने यीशु मसीह को दंड दिया। You look at that thief on the cross. और यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, यीशु मसीह के बाजू में जो चोर जो लटकाया गया था क्रूस पर। You look at David, we are going to see a few verses what David told. हम दाऊद का जीवन देखेंगे। David was a man who has done so many wrong things as well. दाऊद कितना बहुत पाप अपने जीवन में किया था। But he experienced forgiveness from God. लेकिन यीशु परमेश्वर में अपना पाप का क्षमा अनुभव किया। And you name each and every person who is there on this planet, alive or dead, except Jesus Christ. Every one of them have been under the curse of the law. यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में जन्म लिया सारा व्यक्ति जो मरे हैं, जो अभी भी जिंदा है, वो सारा व्यक्ति लोग व्यवस्था का श्राप के अधीन थे। You add your name and I added my name as well. मेरा नाम भी, हमारे नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। टाइटस भाई ने अपना नाम भी ऐड कर लिया ये लिस्ट। When the law looked at all these people, जब व्यवस्था ने ये सारे व्यक्ति की ओर अपना नजर लगाया, they were all guilty and cursed. ये सारे व्यक्ति लोग पापी ठहराए गए, हम भी पापी ठहराए गए व्यवस्था के सामने। Then how are they justified? और धार्मिक, हम अगर गलत पापी ठहराने के बावजूद भी कैसे हम धर्मी ठहराए गए? How can they get eternal life? इस पापी ठहरा हुआ व्यक्ति कैसा अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है? There is only one answer. Christ became a curse for us to redeem us from the curse of the law. And because of Jesus Christ, we have been justified through faith in Christ. इसका एक ही उत्तर है, वो है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना और हमें व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया, और ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। So till the time Jesus died on the cross, there was a forbearance of sins. Forbearance, पुराना पापों का यादगार। अब यीशु मसीह मृत्यु क्रूस पर मृत्यु सहन करने तक पुराना पाप का एक यादगार याद करने का भूल गया था, वो भूल गया था। Forbearance. And then और फिर and then when Jesus Christ died, that justification became truth and reality. वो जो धार्मिक ठहराने का जो अनुभव है वो सच्चाई में बदल गया यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा। So even if Abraham was born before that, he is still justified through faith. अब्राहम अगर यीशु मसीह का मृत्यु के पहले जन्म लिया तो भी वो विश्वास के कारण अब्राहम धर्मी ठहराया गया है। Abraham believed in God and it was counted to him for righteousness. परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ये परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास उनके लिए धार्मिकता ठहराया गया। Now let us come to the last portion of what we have to study, Romans chapter 4 and 5. और हम वो आखिर का पोर्शन में हम आएंगे। In Romans chapter 4 and 5, रोमियो का 4 और 5वां अध्याय में, I would encourage all of you to open your Bibles if you have. हम सब हमारे बाइबल खोल के हम पढ़ेंगे, Because हमारे हाथ में बाइबल है तो।
that is the reason why I did not put those verses over here. I could have put them easily. इसलिए मैंने वो वचन ये स्क्रीन में नहीं डाला, ताकि हम सब अपना बाइबल खोल के हम सब पढ़ेंगे. So Romans chapter 4, we're not going to read through everything, but we'll look at it. Romans chapter 4, if you look into your Bible, it has chapter 1 verse 4 has verse 1 to 25. हम अगर हमारे बाइबल में देखेंगे तो रोमियो का किताब का 4वां अध्याय में पहला और 5वां वचन तक 1 to 25 verses are there in this chapter. पहला से 25 वचन है इस अध्याय में, 4वां अध्याय में. There is only one small passage which is 6, 7, 8 which is written about David. दाऊद के बारे में सिर्फ एक छोटा सा भाग है, वो है 6, 7 और 8. And the remaining all of the chapter 1 to 5 and 9 to 24, all of this is written about Abraham. वो 3 वचन के अलावा सारे वचन इस 4वां अध्याय में अब्राहम के विषय में लिखा है. And this beautiful example of Abraham and David is actually given over here to make us understand verse 25. ये जो वचन पहला वचन से 24वां वचन तक दाऊद और अब्राहम का उदाहरण से पौलुस हमें 25वां वचन समझाने की कोशिश कर रहा है. And the 25th verse is nothing but saying that Jesus Christ died for our sins and he was raised to life to make us right with God. ये 25वां वचन में यही पौलुस एक सिंपल चीज बात कहता है कि यीशु मसीह हमारे पाप द्वारा मृत्यु सहन किया और वापस जी उठा ताकि हम धर्मी ठहराए जाए. Before we go to Abraham, let's look at what David is saying. अब्राहम का उदाहरण देखने से पहले हम दाऊद क्या कहता है ये हम वचन पढ़ेंगे. Let's see verse 6, 7 and 8. हम एक साथ हमारे बाइबल में वचन 6, 7 और 8 पढ़ेंगे. David spoke of this when he described the happiness of those who are declared righteous without working for it. And he said in this is a passage of Psalm 32, which we often take in our Sunday Psalm reading. ये वचन संहिता 32 का 1-2 वचन है जो हम संडे पढ़ते हैं बार बार. वो वचन इस अध्याय में लिया गया है. David is saying, oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, or you can say whose sins are put out of sight. दाऊद कहता है कि कितने भाग्य है, कितने धन्य है वो जिनका पाप, जिनका अधर्मी काम क्षमा किया गया है और जिनका पाप को कवर ढक दिया गया है. And what joy is there for those people, you know, how blessed they are, whose record of sin the Lord has cleared of all sin. और कितना भाग्यवान है, कितना आनंद है उस व्यक्ति को जिसका पाप परमेश्वर गिनती में नहीं लाता है. Think about this person, David. He probably did not see Jesus in his lifetime. और इस व्यक्ति के बारे में हम जरा सोचेंगे. दाऊद ने यीशु मसीह को अपना समय में नहीं देखा. He prophesied sometimes about Messiah. ये मसीहा के बारे में दाऊद ने प्रोफेसी भविष्यवाणी किया. बीच में दाऊद ने आने वाला मसीहा के विषय में भविष्यवाणी किया. And but this David, he's here experiencing that forgiveness of sin. लेकिन इधर हम देखते हैं कि दाऊद वो पाप का क्षमा अनुभव किया है करके. Because he understood that God is someone who is the just and justifier. क्योंकि ये सच्चाई दाऊद समझ पाया कि परमेश्वर ही धर्मी है और परमेश्वर ही धर्मी ठहराने वाला है. That is the reason why Paul is quoting to the people in the Rome church, in the church of Rome, that guys, come on, this is David who is actually saying he was blessed because he was forgiven. इसीलिए पौलुस रोमियो का मंडली को ये बात सच्चाई समझाने की कोशिश में दाऊद का उदाहरण लेके कहता है, देखो दाऊद भी अपना पाप का क्षमा प्राप्त करने का अनुभव से कितना आनंदित है
और वो आनंद महसूस कर रहा है. And then he goes back to top. He is speaking about the entire chapter is talking about Abraham. फिर बाकी पूरा अध्याय में पौलुस अब्राहम के बारे में कहता है, बात कर रहा है. I would encourage all of you to go back home and read, spend some time with these two chapters. मैं आप सबको प्रोत्साहन दूंगा कि आप घर जाके ये चौथा अध्याय घर पे चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय पढ़े. And we read verse 3. हम तीसरा वचन पढ़ते हैं. 2 and 3. If his good deeds had made him acceptable to God, if his good deeds had made him acceptable to God, he would have something to boast about. But that was not God's way. For scripture tells Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. हिंदी में कोई पढ़ सकता है दूसरा और तीसरा वचन? हाँ, अगर है तो, नहीं है तो चलेगा. हाँ, यशपाल ब्रदर आप पढ़िए ना. क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहरा जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं. धर्मशास्त्र यह कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. So Abraham believed God and it was counted to him for as righteous because of his faith. तो अब्राहम ने ये परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास अब अब्राहम के ऊपर धार्मिकता जैसा ठहराया. 4th and 5th verse, when people work, their wages are not a gift, but something they have earned. But people are counted as righteous not because of their work, because of their faith in God who forgives sinners. तो ये आगे वचन में पौलुस एक्सप्लेन करता है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका जो तनख्वाह है वो उसका योग्यता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के विश्वास, लेकिन जब परमेश्वर किसी को धर्मी कराता है वो उनके काम के कारण नहीं, बट परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास द्वारा उनको धर्मी ठहराता है, जो परमेश्वर क्षमा देने वाला परमेश्वर है. And then he's saying about David, you can imagine that that forgiveness of sin that we are experiencing is not something that we have earned, it's a gift from God. इसलिए दाऊद का उदाहरण देके पौलुस कहता है कि हम जो पाप का क्षमा जो अनुभव करते हैं वो हमारे काम का कारण नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का दान है. The next passage of verse 9 onwards, he's saying circumcision versus Abraham. तो आगे का भाग में वो पौलुस सिखा रहा है कि सर्कमसिशन इन हिंदी खतना. तो खतना करना और अब खतना करना का जो प्रैक्टिस है वो अब्राहम के विषय और अब्राहम के साथ उसका तुलना कर रहा है. So Abraham believed in God and he was justified even before the circumcision was actually rolled out. तो पौलुस कहता है कि जब अब्राहम परमेश्वर को जाना और परमेश्वर पर विश्वास किया, वो खतना करने का प्रैक्टिस आने से पहले ही परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया. So all Jews were actually the children of God who had to undergo circumcision to be people of God. तो यहूदी लोग के समय में सारे यहूदी लोग खतना करने का वो प्रैक्टिस से जाना था, ताकि अगर उनको परमेश्वर के बच्चों में गिनती में आना है. But Paul is saying here कि before circumcision itself Abraham believed in God. लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है कि खतना करने से पहले ही अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया. So he was justified by faith. तो इस कारण वो अब्राहम विश्वास द्वारा धार्मिक ठहराया. He did circumcision because God told that was supposed to be done. वो खतना करने का प्रैक्टिस किया क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था. But he was justified by faith. लेकिन अब्राहम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया. Now in verse 18-19 18 और 19 का वचन में it says, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. जब आशा का उम्मीद का कोई कारण नहीं था, तब भी अब्राहम ने विश्वास किया कि वो एक दिन बहुत राज्यों का पिता बनेगा. He did not have even one child. वो एक बच्चा नहीं था अब्राहम को. But he believed God will give him.
if he has promised, he will do it. लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे बोला है, परमेश्वर ने उसे वायदा किया है और वो परमेश्वर वो करेगा. And God counted that as righteous. और वो विश्वास परमेश्वर ने अब्राहम के लिए धार्मिकता का गिनती में किया. And he looked at his body and he said, 100 years हो गया, this is all dead. और वो अपना शरीर को देखा कि ये तो शरीर 100 साल पुराना शरीर है, एक मरा हुआ शरीर है. He looked at his wife's body and Sarah, 90 years old, but you are dead. वो अपना पत्नी सारा का शरीर को देखकर बोला, ये पुराना शरीर हो गया है, एकदम मरा हुआ शरीर बन गया है. And if you look at these people, there is no chance that these people can bear any children. और वो साधारण परिस्थिति पर देख के उसने समझा कि साधारण परिस्थिति में ये दोनों व्यक्ति, हम दोनों के द्वारा एक बच्चा होने का कोई मार्ग नहीं है. Abraham believed in God. लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया. And he knew that God would give one day, and God did. और वो जानता था कि परमेश्वर एक दिन दान देगा, और परमेश्वर ने किया, उन्हें दिया. So now we read 23, 24, 25. Why all this story is recorded over here? इसीलिए हम अगर इसके बाद हम जब पढ़ेंगे कि 23 और 25 वचन में ये कहानी क्यों कहा गया है. When God counted him as righteous, it wasn't just for Abraham's benefit. जब परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया, वो सिर्फ अब्राहम का भलाई के लिए नहीं था. It was for our benefit too. वो हमारा भलाई के लिए भी था. Assuring us that God will also count us as righteous. हमें ये assurance, ये हिम्मत, ये हिम्मत दिलाते हुए कि जैसा अब्राहम को धर्मी ठहराया, हम भी धर्मी ठहराएंगे. If we believe in him, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो. So Abraham believed in God and he was justified. अब्राहम ये परमेश्वर पर विश्वास किया और उसे धर्मी ठहराया परमेश्वर ने. And this whole thing was recorded over here. और वो सारा बातें को यहाँ पे उसका रिकॉर्ड किया है. So that it will give me the assurance that God will count me as righteous if I believe in him. और ये बात अब्राहम का कहानी हमें हिम्मत देता है कि मुझे भी विश्वास द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराता है. The one who raised Jesus from the dead can actually make me righteous. जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया, वही परमेश्वर मुझे धर्मी ठहरा सकता है. And that's the summary which is said in verse 25. और वो ही ये बात का सारांश में कहता है. Verse 25, he was handed over to die because of our sins. Can you hear me? वचन हमारे कारण यीशु मसीह को मृत्यु के लिए He was raised to life to make us right with God. यीशु मसीह को जी उठाया हमें परमेश्वर के साथ. He was raised to life to make us right with God. परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह को वापस जी उठाया. This is the beautiful thing about the gospel. ये है सुसमाचार का सुंदर बात, महत्व बात. Jesus died for my sin, to take away my sin as his sin and to give me his righteousness. यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया मेरा पाप स्वीकार करने के लिए, मेरा पाप का दंड सहन करने के लिए, और परमेश्वर का धार्मिकता मुझे देने के लिए, और यीशु मसीह का धार्मिकता मुझे देने के लिए. We have a few minutes. We'll wrap this up in the next few minutes. हम कुछ ही समय में ये समाप्त करेंगे. Romans chapter 5. रोमियो का 5वां अध्याय. First verse begins. Therefore, पहला वचन का शुरुआती होता है, इस कारण, having been justified by faith.
धार्मिक ठहराया है इसी कारण, therefore we have peace with God. इसीलिए हम परमेश्वर के पिता परमेश्वर से शांति प्राप्त करते हैं. Can anyone read that verse in Hindi? वो हिंदी में जरा वो पढ़ सकते हैं. रोमियो का 5:1, Romans 5:1. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. इसलिए therefore having been justified by faith. इस कारण कि हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए हैं, इस कारण Jesus rose again to make me right before God. यीशु मसीह मृत्यु से वापस जी उठा इस कारण, ताकि मेरा परमेश्वर से मेल मिलाप हो. Therefore I have peace with God. इस यीशु मसीह का जो जी उठने के कारण मैं परमेश्वर से मेरा मेल रखता है. Brothers and sisters, chapter 5 is just amazing. The verses that I read after that, it was like, oh God, this just makes a full meaning to me now. ये बहुत अद्भुत बातों के बारे में 5वां अध्याय में हम सीखते हैं. मैं पढ़ते पढ़ते बहुत अचंभित होके ये सब मेरे को एकदम रियल एकदम अनुभव कर पाया मैं वो वचन. You know, verse 2 says Christ brought us into this undeserved privilege of situation. आगे का वचन में हम पढ़ते हैं कि हम हमारा अयोग्य जो है एक सौभाग्य जो जिसका हमें योग्यता नहीं था, वो सौभाग्य हम यीशु मसीह द्वारा प्राप्त करते हैं. Let's spend some time to understand what Christ took our place. You know, it's written from verse 5 to verse 11 is about Christ taking our place. We'll just read quickly that verses, and I'm not going to explain much about that because of shortage of हम time. कुछ भाग जो है वचन तुरंत पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे. 5वां वचन और 11वां वाक्य तक हम ये वचन तक ये पढ़ते हैं कि सीखते हैं कि कैसा परमेश्वर ने हमारा जगह ले लिया. Let's read this from our Bible, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. हमारा बाइबल से हम पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This verse is just beautiful. यशपाल ब्रदर, आप हिंदी में अगर पढ़ सकते हैं. हाँ 5 का 6 से 11. ओके. क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा. किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. 9, 10, 11. ओके. अतः जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे. क्योंकि मेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, जो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे. केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं. Fantastic. We'll read this verse. I'm going to read it in NLT version. When we were utterly helpless, Christ at just the right time died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation or God's wrath. For since our friendship with God was restored by the death of his Son, while we were still his enemies, we will certainly be saved through the life of his Son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends with God. I mean, I was really very overjoyed when I was reading this passage. ये वचन पढ़ के मेरा हृदय में बहुत आनंद से भर गया.
says, because Jesus Christ has rose again, यीशु मसीह वापस जी उठा, इस कारण we will be saved from the wrath of God. हम परमेश्वर का क्रोध से हम बचेंगे जरूर. That is what the gospel brings, a big hope in the life of this sinner. इसीलिए एक पापी का जीवन में सुसमाचार ये बड़ी आशा लेकर आता है. However desperate and however sad and sinful our situation be today, कितना भी मुसीबत और कितना भी बेकार अवस्था आज अगर हमारा हो तो, because God raised up Jesus Christ from the dead, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जीवित किया, इस कारण, because that God foreknew me, वो परमेश्वर मुझे पहले से जाना, इस कारण, because that God predestined me, वो परमेश्वर ने मुझे पहले से ही ठहराया, because He कारण, called me, वो ही परमेश्वर ने मुझे बुलाया, इस कारण, because He justified me, वही परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, इस कारण, He will glorify me. वो परमेश्वर मुझे जरूर महिमा तक ले जाएगा. That is why the gospel is the power of God for salvation to those who believe. इस कारण सुसमाचार उद्धार परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए. And the last passage what we have in chapter 12 to 19, verse 12 to 19. 12वां अध्याय 12वां वचन और 12वां वचन से 19वां वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो, It's explaining about how Adam and Jesus Christ were one man, through whom sin came, it was Adam, and through whom righteousness came, that was through Jesus Christ. तो वो 12वां वचन से और 18 और 19वां वचन तक हम ये बात समझते हैं कि कैसा आदम एक व्यक्ति, उससे पाप आया और इस प्रकार एक व्यक्ति यीशु मसीह उनके द्वारा धार्मिकता आया. This is this illustration over here. If you can see my screen properly, अगर हम ये चित्र देखेंगे तो, Adam sin was transferred to men. आदम का जो पाप है वो सारे मनुष्य के ऊपर ट्रांसफर हुआ. Man's sin was transferred to Christ. और मनुष्य का पाप यीशु मसीह पर ट्रांसफर हुआ. And those who believe in Jesus Christ, to them that Christ's righteousness was transferred. और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका धार्मिकता सारे मनुष्य पर ट्रांसफर हुआ. In reality, if you read, करते हैं, in reality, if you read 12 to 19, it's just speaking about the entire of this particular thing. तो 12वां वचन से 19वां वचन तक यही बात को पौलुस समझाता है. Through the obedience of that one man, Jesus Christ, सिर्फ वो एक व्यक्ति का जो आज्ञा पालन के कारण many will be made righteous. बहुत लोग धर्मी ठहराने वाले हैं. Many will be made righteous who believe in Him. बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे. And then there's 20 and 21st verse, the last part, where it says, where आखिर, sin abounds, grace abounds much more. इसीलिए वो आखिर का वचन में जो 20वां और 21वां वचन में कहता है, जहाँ पे पाप बढ़ता है वहाँ पे अनुकृपा और भरपूर है. So this is the great hope for us, that where sin, even if it is increasing like anything in यही हमारे लिए जो बड़ा in the current century, whatever we are living in, तो यही हमारा बड़ा आशा है. अगर पाप बहुत रीति से बढ़ रहा है तो भी हम जिस समय पर है इस दुनिया में, पाप अगर चारों तरफ बहुत बढ़ रहा है तो भी, like it says, some people say Jesus के जमाने में they did not have so many things, they did not have so much internet and all these kind of things. हम कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के समय में शायद बहुत बड़े बड़े पाप शायद थे नहीं, वैसा इंटरनेट तो बहुत सारे पाप करने का सुविधा शायद नहीं थे. But word of God says, where sin abounds, there the grace of God will now abound much more. परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन जिधर पाप है, जिधर पाप अगर बढ़ता है तो उधर परमेश्वर का कृपा अधिक बढ़ता है. It is by this grace that we have been saved.
यही अनुकृपा के कारण के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। Let us just thank God, Lord, what a wonderful gospel, the gospel that brings the power of God for salvation. इसीलिए हम ये बात जानकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर कितना महान आपका सुसमाचार का ताकत है कि हमें उद्धार की ओर लाता है। What can I thank God today for? आज मैं परमेश्वर के लिए किस कारण के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं? I thank God for justifying me in God's sight through His Son's obedient, sin-bearing death on the cross. मैं परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराया, उसके पाप, उसके जो मेरा पाप सहन किया हुआ मृत्यु द्वारा। There is nothing else that can be a reason for justifying me before God. कोई और मार्ग नहीं है परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराने के लिए सिवाय इस मार्ग से। I thank Him for dying in place of me and rising up to give me that assurance of salvation and eternal life. मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जगह पर मृत्यु सहन लिया और जीवित उठा और मुझे इस बात का हिम्मत दिया, उद्धार का हिम्मत और अनंत जीवन का आशा। I thank Jesus for redeeming me from the curse of that law. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। Like David, I thank Him for giving me that blessed experience of experiencing the forgiveness of sin and that assurance that one day He will make me blameless and holy in His presence with fullness of joy and counting me as righteous through His undeserved mercy and grace alone. मैं धन्यवाद, दाऊद ने जैसा कहा कि कितना भाग्य हूं मैं, कितना आनंद है कि मैं परमेश्वर का क्षमा अनुभव किया और मुझे इस बात का हिम्मत है कि एक दिन परमेश्वर मुझे परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर के सामने मुझे ना कलंक ना दोष, एकदम पवित्र होकर, पवित्र शुद्ध होकर परमेश्वर मुझे अपने सामने खड़ा करेगा। Let us pray, oh Lord, restore to me that joy that is there in your salvation. परमेश्वर से हम पुकारेंगे, परमेश्वर वो उद्धार का आनंद, आप जो आपका उद्धार का आनंद है वो मेरे हृदय में वापस लाना परमेश्वर। Lord, let there be nothing that will steal the place of Jesus Christ in my life. परमेश्वर ऐसा कोई भी बात ना हो जो यीशु मसीह का जो स्थान है मेरे जीवन से छीन ले। Lord, you died and rose again, and this is not something that you started now. You did it before the foundation of the world. परमेश्वर आप आपका जीवन बलिदान करके आप जी उठे और आपने ये अभी उसका शुरुआत नहीं किया, लेकिन इस पृथ्वी का आरंभ से पहले ही आपने शुरुआत किया हुआ ये बात है। Thank you for giving me the opportunity to believe in you, Lord. आप पर विश्वास करने का जो सौभाग्य मुझे दिया है परमेश्वर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I couldn't have even heard the gospel, but you gave me that gracefully. You gave me that opportunity, Lord. मैं सुसमाचार सुनने का अवसर नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपने अवसर दिया ताकि मैं आपका सुसमाचार सुनूं। I pray, Lord, keep my faith till the end. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरा विश्वास आप अंत तक रखो। May the Lord bless us with His words. परमेश्वर हमें आशीष करे।